ऑडियो क्लियर है। स्क्रीन विजिबल है। ओके। एम आई ऑडिएबल? ऑडियो जा रही है? ओके। फायरवॉल एज अ बिगनर गाइड हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था और कुछ इसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि अगर कैसे हमारे पास फायरवॉल है तो हम लोग उसमें सिक्योरिटी लेबल डिफाइन करते हैं। सिक्योरिटी लेबल का पर्पस क्या होता है? टुडे वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर द लैब। ओके। So demonstration or lab is very very important to learn the firewall. As per CCNA, there is only introduction part of Cisco SA firewall, but as per advanced configuration, as per advanced concept, today I'll tell that how to set up Cisco SA firewall, how to use Cisco SA firewall as a CLI, as a GUI. Okay, so we will discuss multiple things today. Okay, and same thing I'll share like how to set up uh, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल एज वेल एज हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो सारी चीज़ें हम लोग इधर कंप्लीट और सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पर एक सिस्को पैकेट ट्रेसर, यू कैन यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। देर आर टू फायरवॉल in Cisco Packet Tracer. Cisco provide this tool for CCNA student or for Cisco student to learn the practices about different types of software or like a program, okay, or हार्डवेयर डिवाइसेस। तो सेम थिंग यू कैन एक्सपीरियंस विथ रियल। ओके, तो मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा। यू कैन एक्सपीरियंस सिमिलर थिंग्स ओके इन रियल फायरवॉल। there is no big difference. Okay, just you must know that how to access any firewall in industry. Okay, how to configure that particular firewall and how we can access new firewall through management port, or how we can access any firewall through different interfaces like ethernet, fast ethernet, or any other interfaces, right? तो मेन थिंग्स टू एक्सेस द फायरवॉल, एंड देन आप उसमें जितना समय देते हो, जितना टाइम देते हो, यू विल बी एक्सपर्ट। ओके, आप उतना एक्सपर्ट हो गए। तो एक समय देना होता है। एवरी डिवाइसेस आर, these are the advanced level devices, so these devices demands higher level of experiences, expertise and multiple things। इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होता है कि एक एडवांस इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। दिस इज़ माय हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल सेटअप, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप है। यू कैन सी देर आर एन ISP, and this ISP can provide internet connection for our network devices. So you can connect your firewall directly from ISP, or you can connect your firewall from routers. Okay, and router you can connect with ISP. It is depend on you that what type of setup you want, right? So it is totally based on your uh, लाइक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इंटरप्राइज नेटवर्क डिमांड्स की कैसे वहाँ पर करना है। सो फायरवॉल यूज एज अ मेन डिवाइस ओवर अ नेटवर्क, और यू कैन यूज राउटर एज अ मेन डिवाइस ओवर अ नेटवर्क। इट इज़ अ टोटली टोपोलॉजी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आई थिंक आपको यह सभी लोगों को अच्छे से टोपोलॉजी के बारे में आइडिया होगा। तो अनदर, मैंने यहाँ से एक मैनेजमेंट पोर्ट लिया है, एंड दिस मैनेजमेंट पोर्ट कैन अलाउ टू एक्सेस GUI लेबल और GUI सर्विस or GUI based firewall. So this Windows machine can access this particular Cisco firewall with the help of GUI, and there are an application which is ASDM. Okay, ASDM, which is designed and managed by Cisco. So Cisco allow you to access Cisco firewall with the help of ASDM launcher, and ASDM launcher can access the firewall to configure with the help of GUI
कंसोल। ओके, तो ASDM लॉन्चर आपको चाहिए होता है। एंड हाउ यू कैन डाउनलोड एंड मैनेज ASDM launcher? So ASDM launcher, you can Google it, or you can just configure your firewall with management interface or with any other interfaces. Then you can apply the HTTP server, and HTTP server you can access with the help of HTTP server, you can access this firewall. Okay, so HTTP server or a particular machine can access the firewall with the help of HTTP application. So while accessing HTTP application or HTTP URL, you can see, or you can like download ASDM launcher इन फर्स्ट टाइम। तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना होता है कि जब आप HTTP URL टाइप करते हो टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर फायरवॉल विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट कॉन्फ़िगरेशन, then you will be able to download the SDM launcher at that time. Okay, then ASDM launcher required Java application to run the program properly. Okay, so there are some specification. Let me show some real firewall with the help of like images and all. So Cisco ASA firewall, and let me show some like details. So this is the firewall. Okay, you can see this is the simple firewall. Okay, let me download. I can copy this image for educational purpose only. So I can use this firewall, save image. So मुझे ये एक, हाँ, दिस इज द फायरवॉल। तो यहाँ पर आप आ सकते हो। लेट मैं आज का लिंक सारा कुछ चैट बॉक्स में ऐड करता रहूँगा, ये सभी लिंक को आप डाउनलोड करके रख लेना। बाकी जो वीडियोस अगर कभी देखते हैं तो वो URL वगैरह देख लेंगे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप ले सकते हो। सो यस, यू कैन सी सिस्को सिक्योर फायरवॉल ASA। तो these are the firewalls. This is another firewall, this one is another firewall, this one is another firewall. Okay, so there are different types of firewall, and you can manage different types of security, uh, like technology or security algorithm. With the help of these firewalls you can manage IP security, VPN or VPN, unified communication manager. You can manage these all things with the help of these firewall. And also it help organization to increase the capacity and improve the performance of high level security. And it is very important to secure your infrastructure. Okay, so you need to configure and firewall. Sorry, you need to configure a firewall to demonstrate or to like protect your complete organization from the intruder or from the different types of threats. Okay, there are many types of activities जो कि हमारी नेटवर्क या कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रॉपर नहीं होती हैं। सो वी नीड these types of devices. There are many vendors जो कि आज के समय पर आप देखेंगे जो फायरवॉल का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सिस्को जो भी है उसमें से एक बेस्ट वेंडर है जो इसको सपोर्ट करता है। And it provide collaboration with physical topology and virtual devices. You can manage this firewall with the help of or with physical as well as virtual. Okay, you can meet the unique needs or meets the unique needs of the, sorry, of both network and the data center. Means any type of network, any type of network infrastructure, you can use Cisco ASA firewall to maintain the security, right? And there are many policies or many different types of policies you can configure on your Cisco ASA firewall to protect the inside of security as well as outside of security from different intruders or malware. Okay, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और VPN is one of the most important part to know the firewall or to configure the firewall for security of any organization. While configuration of two uh, like sites to each other, it is mandatory to configure the firewall, sorry, VPN in a Cisco ASA firewall. And VPN already हम सबको पता है कि it create or VPN creates
लाइक टनल बेस्ड कम्युनिकेशन। तो आप इसमें साइट टू साइट वीपीएन और मल्टी साइट वीपीएन और इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरीके की आप कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। देर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर पावर और डिवाइसेस जो कि सारी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं। तो आप इनको देख सकते हो एंड जस्ट कांटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है कि आप सिस्को के सेल्स डिपार्टमेंट से कॉल करके। वेंडर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट इंडिविजुअल पर्सन टू डिमॉन्स्ट्रेट or to configure or to plan the firewall level security for any organization. You need to contact your vendor or you can contact your local vendor or ऑलरेडी कंपनी के पास अपडेट होता है। तो आर अगर आपको इंफ्रा लेवल की नॉलेज है दैट देन डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट अ बेस्ट फायरवॉल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। बट मैक्स टू मैक्स आप फायरवॉल के मॉडल नंबर और सारी चीज़ों को देखकर यहाँ से सर्च कर सकते हो। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस ऑफ नेटवर्क्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन इंडस्ट्रीज। तो एज पर एजेस यू कैन सेट अप फायरवॉल डिवाइसेस। तो उसके लिए वेंडर सपोर्ट है। मॉडल डिवाइसेस को आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो क्या क्या फीचर सपोर्ट कर रहा है एंड दैट पर्टिकुलर फीचर्स आर दोज फीचर्स आर जो भी वहाँ पर मिल रहे हैं, जो फायरवॉल दे रहा है, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट करते हो और मैनेज करते हो। सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दीज आर द एक्सपर्ट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। एंड ऐसा नहीं है कि एज अ बिगनर आपको इसमें काम और सारी चीज़ें मिलेंगी। जहाँ तक कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि कंपनी जब आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है देन डेफिनेटली वो डिटेल्स आपसे या फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन पर प्रमोट कर सकती है। अगर आप एक अच्छे से इसके साथ प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको आ, अच्छा से जॉब और सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं इसमें। बट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है इन सब डिवाइसेस के साथ काम करना। अगर यहाँ तो मैं एएसए फायरवॉल की काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूंगा। आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वन मोर थिंग मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, यू कैन लर्न Palo Alto Firewall free for 6 to 7 hours from our playlist. Okay, I'll share complete playlist to everyone in मैसेज बॉक्स। बाकी यूट्यूब पर पोलो ऑल्टो फायरवॉल है या हमारी वेबसाइट सीखो लाइव.com पर आप पोलो ऑल्टो फायरवॉल के बारे में एक बार फ्री रजिस्ट्रेशन करके पढ़ सकते हो। यू कैन सी यू कैन सेलेक्ट कोर्सेज सेक्शन। और जल्दी वेबसाइट का सारा कुछ चेंज होने वाला है तो शायद यूआई थोड़ा चेंज हो बट कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। सो सी आई थिंक यहाँ पर पोलो ऑल्टो फायरवॉल है। मोर देन 1,000 कैंडिडेट कैन इनरोल फ्री टू लर्न। ओके, इट इज़ फ्री टू लर्न, देर इज़ नो नीड टू पे एनी अमाउंट। ये मैंने 6-7 घंटे का कोर्स अच्छे से फ्री में रखा हुआ है। मैं चाहता तो 10-10 15-15 मिनट का सेशन बनाकर एटलीस्ट 30-40 सेशन बना देता और उस 30-40 सेशन को मैं एज अ 200 500 1000 जो भी है चार्ज लगा सकता है। बट मुझे पता है कि ये एक बेस्ट कोर्स है। आप जब इसमें एक्सपर्टीज ले लोगे या थोड़ा सा इस लेवल की नॉलेज हो जाएगी देन आप खुद ही डिसाइड करो कि मुझे आगे जाने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कैपेबल हो नहीं हो। सो ये सारी चीज़ें मीट करती हैं इधर। सो यू कैन सी ओके, बहुत सारी चीज़ें इधर हैं, आप इधर देख सकते हो। तो एक पोलो ऑल्टो फायरवॉल इधर से लर्न कर लेना, सिस्को एस से मैं पढ़ा देता हूँ। देन यू कैन कंपेयर बोथ फायरवॉल दैट व्हाट टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस डिफरेंस, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स डिफरेंस एंड इज देयर एनी अदर डिफरेंसेस। ओके, सो यू कैन एक्नॉलेज, यू कैन रिकॉग्नाइज एज पर योर ओन एक्सपर्टीज नॉलेज, है ना। दोनों ट्यूटोरियल दोनों कंटेंट मैच करके आप देख सकते हो। तो ये है। बट ये फायरवॉल आपको कुछ एडिशनल लेट मी शो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक यस यू कैन सी
दिस इज द सिंपल फायरवॉल लाइक सेटअप, जहाँ पर आप देख सकते हो पोर्ट्स 1 to 7 यहाँ पर हैं। एंड इससे हमारा सिस्को आईपी फ़ोन भी कनेक्टेड है, वेब सर्वर भी कनेक्टेड है और कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड है। यहाँ पर आपको एक कंसोल पोर्ट मिल जाता है। कंसोल पोर्ट का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है क्या है। और यहाँ पर आईएसपी है। आईएसपी के लिए हमारे पास पोर्ट 0 है जो कि आउटसाइड के नाम से होगा। तो इंटरनेट कनेक्शन अगर हैंडल करना है, सो यू हैव लाइक आउटसाइड पोर्ट, एंड आउटसाइड मीन्स यू कैन मैनेज आउटसाइड ऑफ सिक्योरिटी, आउटसाइड ऑफ कनेक्शंस, ओके। कंसोल पोर्ट यू कैन एक्सेस दिस फायरवॉल विद द हेल्प ऑफ कंसोल, तो कंसोल का एक्सेस आप इसके थ्रू ले सकते हो। अनदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लाइक आई थिंक यहाँ पर एक आईपी फोन और इसके लिए लिखा हुआ है आई नीड अनदर, सेम आई हैव लैब, जहाँ पर आईएसपी है। एक अनदर मैनेजमेंट इंटरफेस से मैंने एक विंडोज मशीन को कनेक्ट कर रखा है। इफ यू हैव न्यू फायरवॉल देन यू हैव ओनली विंडोज मशीन और एनी अदर मशीन, एनी लिनक्स, विंडोज, वट एवर, मैक, एंड दैट पर्टिकुलर machine can access this firewall with the help of GUI. There are limited feature only. There are limited configuration, or 4, 5 or 6 line configuration you can enable on firewall. Then you have access of Cisco SA firewall with GUI. ओके, तो ये चीज़ मैं अभी लाइव आपको दिखा देता हूँ। बट ये एक सिंपल सा अपडेट और ये सारी चीज़ें इधर हैं। अनदर थिंग मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया। एंड या सिस्को का ये एक अपडेट है। सो दीज आर द डिवाइसेस, ओके। ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनका आप इस्तेमाल करके कुछ सेटअप और सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये एक 5505 सीरीज का फायरवॉल है। This firewall totally free in Cisco Packet Tracer, so there is no need to go for any images and all. You can practice everything. You can practice all demonstration or maximum demonstration with the help of Cisco 5505 firewall. CPT के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल जाए। You can see this is the 5506 and 5505 firewall. So you can set up GUI as well as CLI, दोनों यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो 550 पावर सप्लाई अडॉप्टर है, पावर केबल है, कंसोल केबल है। दिस इज द कंसोल केबल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके। फॉर एवरी डिवाइस यू हैव डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल बुक। तो यहाँ से आप देखो, इसमें भी मल्टीपल पोर्ट हैं जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी सेटअप करते हो। कंसोल पोर्ट है फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए, मैनेजमेंट पोर्ट है, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आप HTTP सर्वर इनेबल करके चाहते हो तो आप अपने फायरवॉल का एक्सेस ले सकते हो ग्राफिकल लेवल पर, जो कि अभी मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ। सो ये सिंपल हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन और सारी चीज़ों के लिए आ जाता है। आई थिंक अनदर हमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं वो करना है। सिस्को का एक अनदर इमेज हमारे पास अपडेट है। इन सब चीज़ों से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन सेटअप द लैब, ओके। मल्टीपल सेटअप मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देर इज़ नो बिग लाइक आर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, सिंपल आपको इजी वे में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बट लेट मी एक्सप्लेन इन इजी वे। सो एज अ न्यू यूज़र जब आप होते हैं तो फायरवॉल या इसको लेकर थोड़ा सा ये होता है, बट ASA मैनेजमेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। यू कैन सी आई थिंक दिस पोर्ट डिस्प्ले द मैनेजमेंट पॉइंट, ओके। मैनेजमेंट पॉइंट इन द सेंस दिस इज द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को हम लोग MGMT से भी लिखते हैं, शायद यहाँ पर मैनेजमेंट लिखा है, MGMT भी लिखा हो सकता है। अनदर यहाँ पर वैन पोर्ट है, जो कि वैन पोर्ट यहाँ से कॉन्फ़िगर है। आउटसाइड के लिए वैन पोर्ट हमारा होता है, ठीक है, जो कि DSCP कनेक्शन से यहाँ पर IP मिल रही है और इसका इंटरफेस ये है। और वैन पोर्ट हमारा जो राउट मॉडम है, ये वैन मॉडम ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्टिविटी दे रहा है और इसको IP भी दे रहा है। तो राउटर से या मॉडम से जो IP मिलती है वो हमारे लिए ये इंटरनेट कनेक्शन का काम कर रहा होगा। यानी कि ये हमारे मल्टी पोर्ट पर कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए अलाउ कर देगा। तो अगर हम कोई इनसाइड के जितने भी इंटरफेसेस हैं, ये देखो हमारा जो मैनेजमेंट पोर्ट है इज़ फॉर इनसाइड, ओके, इनसाइड सिक्योरिटी लेवल। इनसाइड सिक्योरिटी लेवल मैंने बता रखा है प्रीवियसली कि यू हैव हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मीन्स यू हैव 100 ऑफ सिक्योरिटी लेवल to manage the inside of security level, okay। So 100 means higher security level
traffic flow for lower security level, but lower security level traffic does not allow for higher security level। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया है। तो जीबी इथरनेट या हमारा पर्टिकुलर इंटरफेस है विच इज़ फॉर मैनेजमेंट इंटरफेस, एंड दिस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस कैन कन्फिगर विथ पर्टिकुलर switch, this is the layer 2 switch, and these are the devices, okay? These are the devices, like this is the IP phone, or this is the laptop, another management computer, this is the management computer, these are the users for different purposes, right? Single port you can convert with multi port with the help of switch, it is already सबको क्लियर है। तो मैनेजमेंट कंप्यूटर यहाँ पर क्यों दिया गया? इफ़ यू वांट टू सेट अप एनी कॉन्फ़िगरेशन लाइक GUI कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस फायरवॉल, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इस फायरवॉल को ग्राफिकली अपने इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ASDM लॉन्चर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यू कैन सेटअप मैनुअल IP एड्रेस और यू कैन सेटअप DSCP IP एड्रेस, डिपेंड ऑन यू। तो इनसाइड सिक्योरिटी लेवल में ये काम कर रहा है, और इनसाइड सिक्योरिटी लेवल ऑलरेडी सबको अलाउड होता है, राइट? इनसाइड सिक्योरिटी लेवल हायर सिक्योरिटी लेवल होता है, तो वो लोअर सिक्योरिटी लेवल को ट्रैफिक सेंड कर सकता है। तो अगर हमें इनसाइड सिक्योरिटी लेवल में जाना है तो ऑलरेडी वो अलाउड ट्रैफिक होती है, फायरवॉल उसको अलाउ रखता है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हो, आई थिंक एक और इंटरफेस है जो कि ASA फायर पार मैनेजमेंट के लिए होता है। लेटर यू विल लर्न फायर पार एंड ऑल, राइट? मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर एड ऑन होते हैं, बट अभी के लिए उसको रखते हैं साइड में। एंड GB इथरनेट 1/9 इंटरनल समथिंग कुछ वाईफाई एक्सेस पॉइंट DSCP फ्रॉम वाईफाई 192 समथिंग कुछ दिया हुआ है। सो आई थिंक देर इज एनी लाइक इंटर लाइक वाईफाई बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट अगर करता है तो डेफिनेटली यू कैन यूज फायरवॉल टू प्रोवाइडर टू मैनेज वाईफाई कनेक्शन सेटअप। तो सिंपल ये है। तो हमारे पास अभी आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सिंपल हमारे पास फायरवॉल का जो इंटरफेस आईडी और इंटरफेस एड्रेसेस हैं, ये इंटरफेसेस हैं, इट इज़ ओनली फॉर लाइक सेम जो स्विचेस के हमारे पोर्ट्स आ जाते हैं, सेम जो राउटर्स के आ जाते हैं, सेम वर्क के लिए होता है। बट यहाँ पर कुछ पोर्ट आप एक्स्ट्रा देख रहे हो, कंसोल पोर्ट इज फॉर डिफरेंट पर्पस, ऑलरेडी आई वी नो। But management port you can access this firewall with the help of GUI. But management port always work with, or management port work with ASDM launcher with HTTP or HTTPS server. Okay. तो ये सारी सेटअप करने के बाद ही आप मैनेजमेंट पोर्ट का फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अदर अदर पोर्ट्स को राउटर को कनेक्ट करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे के एक डायग्राम में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने ऐसा सेटअप कर रखा है। मैंने मल्टीपल डिवाइसेस को यहाँ पर, जैसे फायरवॉल से मैंने स्विच ले रखा है, विंडोज़ यूज़र है, PC4 है, PC5 है, ये अनदर कंप्यूटर्स हैं, राउटर्स मैंने कनेक्ट कर रखा है। सो अब ऐसा नहीं कि मैंने एक परफेक्ट इंटरप्राइज नेटवर्क सेटअप किया हुआ है, अनदर बहुत सारे सेटअप हम लोगों ने किया हुआ है। बट यहाँ पर जस्ट इस टोपोलॉजी को भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 4 6 घंटे लर्न करना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। ओके, मैं ये प्रॉपर वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड मटेरियल में डाल दूंगा, जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो ISP है, ये मैंने क्या बोला, डायरेक्टली फायरवॉल या ये फिर यहाँ से राउटर को इसके इससे कनेक्ट करके फिर इसको भी सर्विस दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनदर अगर आपको यहाँ पर देखना है तो मैं सिस्को का यहाँ पर अपडेट दिखा देता हूँ कि हर एक पोर्ट वगैरह के बारे में। तो बहुत कुछ यहाँ पर पोर्ट आपको देखने को मिलता है, 5506 के पोर्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। दीज आर द बिगिनर लेवल फायरवॉल। ओके, इसमें VLAN वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। VLAN, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 1 इनसाइड, VLAN 2 आउटसाइड, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। यू कैन चेक द प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ CLI मेथड। ओके, तो मैं अभी इसका भी पूरा सेटअप आपको दिखा दूंगा, रियल का भी दिखा दूंगा, सारा आइडिया आपको हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अनदर यू कैन चेक डिफरेंट डिफरेंट सीरीज मॉडल नंबर एंड ऑल, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर पावर एंड डिवाइसेस, तो जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। रेस्ट आप यहाँ से कुछ एडिशनल हेल्प ले सकते हो इमेजेस वगैरह से, तो कुछ और आइडिया आपको लग जाएगा। और ये सब कंसोल है रियल फायरवॉल के, मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। तो सिंपल ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जैसे स्विच के साथ राउटर के साथ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करते हो, काम करते हो, उसी बेस पर इसको करना होता है। बहुत कुछ टफ या ऐसा कुछ यहाँ पर सेटअप नहीं करना है। ओके, तो अब चलो थोड़ा सा हम लोग और प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्कस करते हैं, और आइडिया लग गया होगा कैसे क्या करना है।
और देखो, अगर एक इंडस्ट्रीज के अंदर मल्टीपल टर्मिनल डिवाइसेस लगी हुई हैं तो आपको हर एक का अलग अलग सेटअप लेने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल सर्वर्स वगैरह होते हैं जिनके थ्रू आप किसी को भी डायरेक्टली एक्सेस करके मैनेज कर सकते हो। बट अगर हम इस टोपोलॉजी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगर मुझे मान लिया कि फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे लेकर चलना है, तो मैं यहाँ से फायरवॉल को सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तो मैं फायरवॉल के लिए आ जाता हूँ अपने, तो ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है और मैं इस सेटअप को यहाँ से, ओके, ओके, तो जस्ट मैं एक्सेस ले रहा हूँ अपना लैब का। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस विंडोज़ मशीन है ना, ये जो विंडोज़ यूज़र है इसको, या सिर्फ पहले मैं फायरवॉल को लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो फायरवॉल को मैंने लॉन्च कर दिया। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल है। तो फायरवॉल जब फर्स्ट टाइम आप बूट करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपको पुट्टी पर बूट करके मिलेगा। अब कंसोल पोर्ट इसीलिए फायरवॉल या सिस्को डिवाइसेस के अंदर होता है कि आप कंसोल पोर्ट यानी कि सीरियल पोर्ट से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर लो। कंसोल पोर्ट मैंने स्टार्टिंग में बहुत डीप समझाया था, अगर आप लोगों को कनेक्ट हो रहा होगा तो बेटर है, नहीं कनेक्ट हो रहा है तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। मान लिया कि एक डिवाइस है, ठीक है, और इस डिवाइस पे मल्टीपल इंटरफेसेस आपको मिल जाते हैं, जिधर आप लैन पोर्ट वगैरह देखेंगे। एक कंसोल पोर्ट आपको मिल जाता है जो कि RJ45 कनेक्टर पर होता है। और इस कंसोल पोर्ट पर अब बिल्कुल न्यू डिवाइस है तो आपका मैनेजमेंट पोर्ट पर आईपी कैसे दोगे आप कैसे GUI एक्सेस करोगे अगर आपने टेलनेट SSH कुछ इनेबल नहीं किया, मैनेजमेंट इंटरफेस पर आईपी नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो जस्ट ऐसी फायरवॉल्स को एक्सेस करने के लिए इफ़ यू हैव आर कंसोल पोर्ट, तो आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, पुट्टी सॉफ्टवेयर है, तो कंसोल पोर्ट को कनेक्ट करो और अपने पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन करो, और पुट्टी सॉफ्टवेयर में कंसोल पोर्ट का नंबर ध्यान में रखते हुए कि कौन से कम्युनिकेशन पोर्ट 1, कम्युनिकेशन पोर्ट 2 या किस पोर्ट पर वो है, आप डिवाइस मैनेजर के प्रोफाइल में भी जाकर चेक कर सकते हो, और वहां से फिर आपको पता चल जाएगा कि ये पोर्ट नंबर 1 पर कनेक्ट है। तो हम कम्युनिकेशन पुट्टी में पोर्ट नंबर 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ से मैं पुट्टी सॉफ्टवेयर दिखाऊं, दिस इज पुट्टी सॉफ्टवेयर, तो ये देख सकते हो सीरियल पोर्ट में अब जो भी हमारा पोर्ट नंबर होगा उसका हम यहाँ से मतलब ऐड ऑन कर देंगे। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, मान लिया कि मैं अभी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखा हूँ, डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन किया। अब डिवाइस मैनेजर में मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि क्या क्या कनेक्ट है और क्या है, तो मैं यूएसबी को जस्ट दिखाऊंगा। अगर यूएसबी पोर्ट पर है तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर USB 3 पॉइंट समथिंग कुछ है। अब इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखकर हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड USB हब कनेक्ट है, इसमें क्या कनेक्टिविटी दी गई है ना, ड्राइवर का क्या अपडेट है, अदर इंफॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगा। तो आई थिंक हमारे USB पोर्ट से अभी कुछ उस तरीके का अपडेट या कॉन्फ़िगरेशन या कोई डिवाइस तो नहीं नज़र आ रहा है। बट हमारे पास जो भी पोर्ट्स अवेलेबल हैं उसको आप देख सकते हैं। USB 3.0 पर कुछ कनेक्टिविटी और USB पर कुछ ऐसा दिखा रहा है कंपोजिट डिवाइसेस, तो मल्टीपल पोर्ट वगैरह का कुछ ऐसा कनेक्टिविटी होगा। तो अच्छा, ये वर्चुअल बस के लिए यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान देंगे। तो मान लिया कि हमारे पास ये एक डिवाइस है, डिवाइसेस 0 यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप देख लो कि आपका कौन सा पोर्ट, आप सीरियल पोर्ट हमारे पास यहाँ पर है क्या कहीं। जो भी पोर्ट्स वगैरह हैं, जो भी डिवाइसेस वगैरह हैं, यहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कनेक्ट होंगी डिवाइसेस तो ऑब्वियसली यहाँ पर पोर्ट और सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलेगा देखने को। तो फिलहाल मैं यहाँ से
सीरियल पोर्ट वगैरह का मेरे सिस्टम पर सीरियल पर नहीं है। अगर मैं सीरियल पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट को लेकर यूएसबी कनेक्टिविटी सेटअप करता तो वो अपडेट मुझे यहाँ पर देखने को मिलता, और उस अपडेट से फिर मैं चेक कर लेता कि भाई हमारा आगे का क्या, या कौन सी डिवाइस इसमें कॉन्फ़िगर करी गई है, ठीक है, या क्या है। तो कुछ अपडेट यहाँ पर डिवाइस के बारे में लिख कर भी आ रहा है। ओके, तो मान लिया कि आपका कोई भी पोर्ट जब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद उस पोर्ट को बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है, पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद सीरियल को सिलेक्ट करके आप आगे जस्ट ओपन कर देंगे, आपका डिवाइस एक्सेस हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप तो कंसोल पोर्ट ही लेंगे ना इसको एक्सेस करने के लिए, और कंसोल पोर्ट पर आपको बस 2-3 लाइन की कमांड रन करके आपको आगे प्रोसेस करना है। तो जैसे ही हमारा कंसोल पोर्ट जस्ट टर्न ऑन हो गया, या कंसोल पोर्ट का सारा कॉन्फ़िगरेशन इधर हो गया, अब मैं सिंपल यहाँ पर माइनर सा सेटअप करूंगा कुछ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। जैसे ही मैंने एंटर किया, एनेबल पासवर्ड पूछ रहा है, एंटर कर दो। कोई पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता भी है तो वो ब्लैंक होता है। रियल फायरवॉल का ये इमेज मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब मान लिया कि इस फायरवॉल को मुझे, ये फायरवॉल है, मुझे कॉन्फ़िगर करना है, और इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पर एक आईपी प्लान करनी है। मान लिया कि मैनेजमेंट इंटरफेस है। अब मैनेजमेंट इंटरफेस का मैंने नाम देना है मैनेजमेंट, मैं शॉर्टकट नहीं ले रहा। और ये 0/0 पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये मैं अभी चेक करके देख लूंगा, क्योंकि जो भी पोर्ट नंबर है, आप न्यू है तो पहले चेक करना सीखें। तो यहाँ पर मान लिया 0/0, तो इसका मैं आईपी एड्रेस सेट करूंगा 1.1.1.1, और इसका /24 बिट पर, और इसका जो आईपी एड्रेस है 1.1.1.2 कर दूंगा। उसके बाद मैं GUI एक्सेस लेके फिर यहाँ से कंसोल पोर्ट का कनेक्शन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो मैं इनेबल करता हूँ एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, और जस्ट यहाँ पर सो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस, सॉरी, सो स्पेस इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ठीक है, आपको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ऑलरेडी देखो हमारे पास एक मैनेजमेंट इंटरफेस दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट इंटरफेस जो दिखा रहा है, यस, यू कैन सी दिस इज द मैनेजमेंट इंटरफेस। मैं पेन थोड़ा सा, मैनेजमेंट इंटरफेस, इसका आईपी एड्रेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर दिया है। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हूँ और सारा कुछ सेटअप करता हूँ, ठीक है। तो पोर्ट हमें पता चल गया जस्ट 0/0 है। तो मैं इसको रिमूव करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, नो इंटरफेस, सॉरी, सिंपल इंटरफेस स्पेस मैनेजमेंट 0/0, मुझे नो आईपी एड्रेस कर देना है। इसमें भी वही कमांड्स हैं जो राउटर पर आपकी हैं। समझ में आ रहा है सबको? बहुत कुछ टफ नहीं है, राउटर की सारी कमांड्स याद हैं तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? हेलो। यस। यस सर। तो इस पोर्ट पर आईपी देना है तो हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस 1.1.1.1 और मास्क दे देंगे, जैसा अभी तक आप करते आए हो। और ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐड कर लेनी है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नेम इफ प्लान करना है, और एक मैं नाम यहाँ पर दे देता हूँ MANA, ये कोई भी नाम आप दे सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इनसाइड दे सकता हूँ, इनसाइड, सॉरी, इनसाइड स्पेलिंग सही कर लेंगे, इनसाइड। तो क्या है, IN, इनसाइड। इनसाइड मतलब आपको सिक्योरिटी लेवल 100 रखना है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेता है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने इनसाइड लिखा, आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे ऑटोमेटिक ही सिक्योरिटी लेवल ले लेगा। अगर मैं जस्ट इससे पहले नो लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनसाइड या मैनेजमेंट इंटरफेस है कुछ ऐसा। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये अभी नहीं आ रहा है, बट अटेम्प्ट देगा कि बाय डिफॉल्ट इनसाइड सिक्योरिटी लेवल 100, ओके, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ओके। तो अभी तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इनसाइड, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। इनसाइड को हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं नेम इफ, और मैं इसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट करने के बाद इंटर कर दिया, और सिक्योरिटी लेवल मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ।
तो ये मेरा सिक्योरिटी, अब जरूर नहीं इनसाइड आउटसाइड लिखने से आपका या इनबाउंड आउटबाउंड लिखने से वो पोर्ट फिक्स्ड पोर्ट है। आप कोई भी इंटरफेस नेम दे सकते हो और उसको 100 सिक्योरिटी लेवल देने का मतलब वो हायर लेवल सिक्योरिटी है, और उससे लोअर की जो भी सिक्योरिटी लेवल की ट्रैफिक के लिए वो डेटा फॉरवर्ड कर सकता है। तो मैंने सिक्योरिटी लेवल क्या कर दिया, 100 दे दिया। ओके। अब ये चीज चेक करने के बाद सो स्पेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो इंटरफेस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटरफेस आईपी ब्रीफ लिखना होता है राउटर में, आईपी इंटरफेस ब्रीफ होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस, और देख सकते हो 111, और यस मैनुअल अप, पूरा वर्किंग आ गया। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाना है, और यहाँ पर माइनर सा मुझे एक और अपडेट करना है, जैसे यूज़र नेम मैं एडमिन दे देता हूँ, पासवर्ड इस डिवाइस को अगर आप एक्सेस करोगे GUI लेवल पर तो ये यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन मैंने दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। HTTP सर्वर, आप HTTP, अब देखो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाकर मैं देख सकता हूँ कि HTTP में क्या लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो सर्वर सेटअप करें, इनेबल HTTP सर्वर रिक्वायर्ड टू रन डिवाइस मैनेजर। ओके। तो HTTP सर्वर मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा सर्वर क्वेश्चन मार्क लगाकर इनेबल आइडल टाइम आउट सेशन टाइम आउट, ये सारी चीज़ें तो मैं जस्ट इनेबल लिख दूंगा। अब अगर आइडल टाइम आउट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आइडल टाइम आउट, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, आइडल टाइम आउट तो जैसे ये होता है कि अगर आप पर्टिकुलर सेशन इस्टेब्लिश किए हो GUI पर और आपने एक समय तक उस पर अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो जो सेशन है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। आइडल टाइम आउट क्वेश्चन मार्क लगाकर आप देख सकते हो 1 से लेकर 1440, है ना, 1440 तक आप लेकर जा सकते हो। इट इज़ इन मिनट। तो ये आइडल टाइम किस में, मिनट में है। डिपेंड ऑन यू, 1 मिनट का रखना चाहते हो, 10 मिनट का रखना चाहते हो, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। तो ये सब है, ये आइडल टाइम आउट है ना। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से सर्वर टाइम आउट सेटअप कर सकते हैं। HTTP सर्वर, या सॉरी HTTP सर्वर सेशन के लिए, तो सेशन भी हमारा सेम टाइम के लिए हो जाता है। ओके। सिंपल यहाँ पर ये डिफाइन कर रहा है कि आप कब सर्वर को लीव करके रखते हो या फायरवॉल को, और सेशन इस्टेब्लिश है तो सेशन को मतलब वो टाइम आउट कर देगा। जैसे कोई भी साइट पर आप विजिट करते हो उस पर HTTP सेशन का सेम यही सिनेरियो होता है। तो HTTP सेशन सिक्योर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो HTTP और सर्वर, HTTP और HTTPS दोनों इनेबल कर सकते हो, HTTP सर्वर और इनेबल। ठीक है, मैं यहाँ से HTTPS सर्वर, क्या HTTPS के लिए क्या दिया हुआ है, ओके नो इशू, ठीक है HTTP से ले लेंगे। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर ये देना है कि HTTP क्वेश्चन मार्क, अब मुझे होस्ट अलाउ करना है, क्योंकि मुझे अलाउ करना है ना मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए। HTTP कोई भी प्रोटोकॉल किस पोर्ट के लिए अलाउ करनी है, इतनी सिक्योर या स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इसके अंदर होता है। तो मैं HTTP को अलाउ करता हूँ किसके लिए, 1.1.1.0 इस नेटवर्क के लिए जिसका सबनेट मास्क है 255 2550, और ये जो हमारा है ये मैनेजमेंट इंटरफेस है। वो चीज़ मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारा सारा सेटअप हो गया। और मुझे क्या करना है, अपने विंडोज़ मशीन को जाकर ओपन करना है। तो विंडोज़ मशीन को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये हमारे पास विंडोज़ मशीन है, तो मैं इस विंडोज़ मशीन को भी इसी के साथ ऐड कर दिया। ओके। तो बस हमारा सेटअप हो गया। तो मेरा यहाँ से GUI सेटअप अब इसके साथ हो जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर IP वगैरह दिया हुआ है, इसका 112 मैं चेक कर लूँगा, रिप्लाई ले लूँगा, और हमारा काम डन। तो ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से जस्ट रिप्लाई ले लें, अपने कंप्यूटर का IP देंगे, और 1.1.1.
आएगा रिप्लाई। अगर रिप्लाई आ रहा है तो आप जब फर्स्ट टाइम, मेरे पास एसडीएम है बट आप जब फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करोगे ना, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा HTTP एक्सेस। आपको एसडीएम लॉन्चर स्टार्टिंग में अगर नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपल इंटरनेट कनेक्शन पहले चाहिए आपकी मशीन को, जिस पर भी आप ये डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हो जावा एंड एसडीएम लॉन्चर को। तो https://1.1.1.1 पूरा प्रॉपर आईपी देकर आप जब एंटर करेंगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल, एक काम करूँ इस चीज़ को, और कंट्रोल H, ये जो हिस्ट्री वगैरह अगर कुछ है तो मैं अगर इसको देखता हूँ नया सेशन लेने के लिए, अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, पुराना हिस्ट्री अगर कुछ है इसको भी डिलीट कर दिया। नाउ अगर मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा आपको। क्योंकि ये एक इनसिक्योर साइट है तो यहाँ से जस्ट आप लॉगिन करेंगे, एसडीएम लॉन्चर नेट चलेगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपको ऐसा देना होता है, ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। एसडीएम लॉन्चर को आप ओपन करोगे, फिर आप अपना GUI सेटअप यहाँ से कर सकते हो। मुझे कमांड से इजी लगता है क्योंकि कमांड ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है, तो ये भी है। और वैसे भी आप सारा सेटअप कर सकते हो, इसको जस्ट अपडेट करना है, ये अपना सारा सेटअप करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने है। अब यहाँ से एक एक चीज़ आप समझना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप ऊपर अपना करंट एसडीएम अपडेट चेक कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पैनल क्या है, सिस्को फायरवॉल है, ये मेन्यू ऑप्शन है। यहाँ से होम मेन्यू है, होम पर आपको करंट सारी कॉन्फ़िगरेशन का अपडेट मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन में आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको सारा डैशबोर्ड आ जाएगा। मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करंटली हमारा होम पेज सिलेक्ट है। यहाँ पर इतने सारे पेजेस हैं, डैशबोर्ड है। तो अगर मैं डिवाइस डैशबोर्ड चेक कर रहा हूँ तो हमारी डिवाइस का नाम सिस्को एस से है। आप इसको चेंज जो भी करना है सब कर सकते हैं। इसका वर्जन क्या है और सारी चीज़ें। फायरवॉल मोड राउटेड है। फ्लैश मेमोरी इसके अंदर जो भी अपडेट है 8192 है। कितनी देर से ये अप है, इसका डिवाइस टाइप कौन है, CPU कितने इस्तेमाल हो रहा है, टोटल रैम कितना इसके अंदर है, इंटरफेस कौन कौन सा एक्टिव है यहाँ पर करंटली वो दिखा दे रहा है। तो एक मैनेजमेंट इंटरफेस जस्ट एक्टिव, बाकी सारे पोर्ट अभी डाउन है। ये पोर्ट अप है डाउन है, उसका अपडेट कौन सा इंटरफेस पर आईपी है वो भी दिखा रहा है। कितने डेटा ट्रांसफ़र या कितना स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो अपडेट आपको मिल जाता है। VPN की समरी यहाँ पर मिलता है, कोई IPsec चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई भी क्लाइंट SSL लेकर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये पूरा अपडेट यहाँ पर दिखा देता है। सिस्टम रिसोर्सेस में CPU कितना यूटिलाइज है कितना फ्री है सारा अपडेट मिल जाता है। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, जो भी सेंड और रिसीव कर रहे हो आप यहाँ से देख सकते हो। अनदर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ फायरवॉल स्टेटस के बारे में तो ये चीज़ अपडेट यहाँ से देख सकते हो। तो बहुत सारा कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखो सेटअप विज़ार्ड है इंटरफेसेस में। अब जितने भी इंटरफेस है फायरवॉल के यहाँ से ग्राफिकली मिल जा रहे हैं। अब मैनेजमेंट इंटरफेस मैंने अप्लाई किया, देखो कितना इजी कॉन्फ़िगर करना। ग्राफिकल ग्राफिकल है तो इसका नाम जो देना है वो आप दे सकते हो, यहाँ पर मैनेजमेंट है।
इसका सिक्योरिटी लेबल क्या देना है, आईपी एड्रेस क्या देना, डीएससीपी सिलेक्ट करना है, डीएससीपी ये मैं मैनेजमेंट पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको जीबी इथरनेट पोर्ट पर एडिट करके अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई नेम ऑफ दिस इंटरफेस, सिक्योरिटी लेवल ऑफ दिस इंटरफेस, आईपी एड्रेस ऑप्टेन चाहिए, डीएससीपी चाहिए। जस्ट इतना कॉन्फ़िगर करके आपको ओके कर देना होता है। इजी है ना कॉन्फ़िगरेशन। तो जीयूआई पर भी इजी है और सीएलआई पर भी इजी है। ओके, जैसा आपको बेटर लगे आप सेटअप कर सकते हो। ट्रैफिक जोन कितना आपने क्रिएट किया है वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, इनसाइड ट्रैफिक जोन, आउटसाइड, या कोई भी डीएमजी ट्रैफिक, जितने भी ट्रैफिक जोन आपको सेटअप करने कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी जोन हमारे क्या होते हैं, अलग अलग लाइक जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी ट्रैफिक किधर मैनेज करनी है इसके लिए। राउटिंग इसके अंदर सपोर्ट कर सकते हो, इसके अंदर देखो स्टैटिक रूट, रूट मैप, ओएसपीएफ, IPv6 ओएसपीएफ के लिए सारा सेटअप इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इसका सेटअप कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बीजीपी, EIGRP, रिप एंड ऑल। साथ में आपको यहाँ पर फायरवॉल के बारे में अदर डिटेल चाहिए तो चेक कर सकते हो। फायरवॉल पर अभी हमारा एक इंटरफेस चल रहा है, मैनेजमेंट इंटरफेस, सारी ट्रैफिक अलाउ है। साइट टू साइट VPN सेटअप करना है, यहीं से आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, आप सारा सेटअप कर सकते हो ऐड बटन प्लस आइकन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। मॉनिटरिंग में आप देख सकते हो कि आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है, और भी 5 इंटरफेसेस आपने यहाँ पर ऐड ऑन कर रखा है, मॉनिटर कर रखा है, तो वो सारे अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी डायनेमिक ARP की डिटेल्स है वो क्लियर कर सकते हो, मैक एड्रेसेस यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फर्दर DSCP सेटअप करना है, ACL कॉन्फ़िगर करना है, जो भी आपको मैनेज करना है यू कैन सी, है ना। तो सॉरी, मॉनिटर यहाँ से करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पैनल इधर है। उसके अलावा आप यहाँ से सेव कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जब आप कमांड से काम करते हो तो राइट कमांड से सेव करते हो, यहाँ से आप क्या करते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सेव करके आपको यहाँ पर हर फायरवॉल, मतलब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं फायरवॉल को रीस्टार्ट कर दूंगा या जो कुछ भी है, मैंने यहाँ से सेव नहीं किया, राइट कमांड नहीं किया है, तो ये क्या कर देगा, फायरवॉल की सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर देगा रीस्टार्ट करने के बाद। तो एवरी कॉन्फ़िगरेशन, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होता है, एक कमिट कमांड रन करना होता है। कमांड से कमिट करना होता है, या तो फिर आप यहाँ से सेव की कॉन्फ़िगरेशन कमांड ऐड करेंगे तो ये फिर काम करेगा। फॉलो पॉलो ऑल्ट वगैरह में हर उसके बाद सेव कॉन्फ़िगरेशन करके ही वो ट्रैफिक या वो पर्टिकुलर सेटिंग अलाउ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने होम पेज पर, और यहाँ से आप देखो लॉग सर्वर अगर आपको बनाना है सो इट इज़ वेरी इजी, आप यहाँ से लॉग सर्वर इसका सेटअप कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। अब ये देखो हमारा लॉग सर्वर जस्ट इनेबल करना है, ASDM सिस लॉग सर्वर स्टेट स्टेप सॉरी रिसीव होना स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, सिवेरिटी लेवल क्या होता है वो चीज़ आप यहाँ से मैप कर सकते हो, डेट क्या है वो चीज़ यहाँ से, टाइम क्या है, लॉग आईडी क्या है, सोर्स IP एड्रेस क्या है, सोर्स पोर्ट या डिटेल्स के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, 443 का एक्सेस है, क्या हो रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन मीन्स कंप्लीट, दिस इज द सिसलॉग सर्वर अपडेट। ओके, तो आप ये चीज कर सकते हो, है ना। कुछ सिसलॉग आप लोग उस समय पूछ रहे थे सिसलॉग सर्वर सेटअप क्या करेंगे कैसे हैं, तो ये सब डिवाइसेस जब एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब एडवांस डिवाइसेस होती हैं, इनको इनको जस्ट आप एक्सेस लेकर इस पे सारा सेटअप सारी चीज़ें देख सकते हो। क्लियर है। तो फायरवॉल बहुत टफ नहीं है, आप देखो फायरवॉल की ट्रैफिक यहाँ से मॉनिटर करके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन है। तो मेरे पास ये जो फायरवॉल का डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर अगर मैं एक SSH एक्सेस भी लूंगा, टेलनेट एक्सेस भी लूंगा, तो भी यहाँ पर ये लिख कर आ जाएगा कि किसी IP ने टेलनेट एक्सेस लिया है, किसी होस्ट ने, पूरा अपडेट यहाँ पर आता रहेगा। तो फायरवॉल की सारी एक्टिविटीज आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कंप्लीट एक्टिविटी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब मान लिया कि आपको मैक्सिमम जो भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ों का पार्ट था, या कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करना है, क्लियर करना है, कलर सेटिंग कुछ यहाँ से सेट करना है, लाइक मैं यहाँ से इसको रेड, इससे इससे ये हमें क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, लाइक आइडेंटिफिकेशन और इन सारी चीज़ों के लिए होता है। जस्ट यहाँ से आप सेव करके इस कंटेंट को सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम पर, और उसको बाद में देख सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो भी मैं यहाँ से काम करूंगा, अगर मैं सिसलॉग के साथ कोई भी काम करता हूँ या इस फायरवॉल के साथ, तो यहाँ पर अपडेट रहेगा। यहाँ पर आ जाते हैं,
कुछ और कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे टेलनेट लेना है, मुझे एसएसएच लेना है, या जो भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगर मैं बेसिक और चीज़ें ऐड ऑन करूँ, जैसे सबसे पहले मुझे अगर होस्ट नेम चेंज करना है, जो भी आपको सेव करना है, तो राइट मेमोरी इधर भी है, राइट करके सेव कर देंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव होता रहेगा वही कमांड है। या तो फिर कॉपी कर सकते हो रनिंग का डेटा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग नहीं है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस। एंड अगेन आप इसको क्लियर कमांड से तो नहीं, बट जस्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सारी कॉन्फ़िगरेशन एक बार में डिलीट करनी है, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑल, बस इंटर की मुझे प्रेस करना है, सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर देगा। ठीक है। बट अगर मुझे एक कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करना है, कोई सेशन डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से उसको डिलीट कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन की जगह मैं जस्ट कॉन्फ़िगर लिखकर ऑल ऑल कर दूंगा तो भी ये डिलीट कर देगा। ये मुझे यहाँ पर नहीं रन करना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर रन करना है। तो मैं जस्ट लिखूंगा क्लियर स्पेस कॉन्फ़िगर, जस्ट यू कैन सी एंड क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे एच जो मैंने अभी सेटअप किया, देखना यहाँ पर एच का ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप क्लियर कर सकते हो। मुझे एच की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर करनी है, जस्ट मैं लिख दूंगा एच क्लियर हो जाएगा। इजी है ना, बहुत आसान है इसके अंदर काम करना। आपको यूआई अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चाहे सॉफ्टवेयर बेस हो ये। आप 10-15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फायरवॉल पढ़ डालेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें, ये सब सीरीज मैंने फ्री में यूट्यूब पर दे रखा है, क्योंकि इनको जितना पढ़ेंगे उतना कम है इन सब चीज़ों में, जितना एक एक पॉइंट आप अपना प्रैक्टिस करते जाओ, सीखते जाओ, ये सारी चीज़ें। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, या मुझे यहाँ पर नॉर्मल जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो कोई पासवर्ड देना है, तो सेम वही कमांड, इनेबल पासवर्ड 123, बस आपका लॉगिन पासवर्ड सेटअप हो जाएगा। बट मैं नहीं दे रहा, इन फ्यूचर मुझे याद नहीं रहा और मैं इसको एक्सेस करने गया तो मुझे मुझे पूरी लैब का सेटअप गड़बड़ करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट पासवर्ड ब्लैंक रखता हूँ। ये सारी चीज़ें, यूजर नेम सेटअप करना बता ही दिया, ये सारी चीज़ें। अब जब फर्स्ट टाइम कोई भी लॉगिन करता है, जैसे मैं, अच्छा चलो ठीक है, एनेबल स्पेस पासवर्ड और 123 मैंने दे दिया। अब मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। अब मैंने एनेबल किया, अब देखो पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है। जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक ये लॉगिन नहीं होगा। बट एक सिक्योरिटी और मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर मैंने आया, यूजर नेम मैंने दिया, लाइक यूजर नेम मैंने दे दिया सिस्को, और पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ, लाइक पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ लाइक सिस्को। एंटर कर दिया, और मुझे एक ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन यहाँ पर देना है, जो कि एक एडवांस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है कि कौन एक्सेस कर रहा है। ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन किसी ने पूछा भी था, थोड़ा सा और बता दीजिए। तो देखो यहाँ से आप सीख लो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, और मुझे ये किसके लिए एक्सेस देना है, इनेबल करना है, एचटीटीपी के लिए एक्सेस देना है, इंक्लूड करना है, क्या करना है एग्जैक्टली exactly? तो अगर मान लिया सीरियल पोर्ट एक्सेस लेना है, कोई सीरियल पोर्ट मतलब कंसोल पोर्ट से ही तो आपके फायरवॉल को सबसे पहले कोई एक्सेस करेगा। अगर मुझे उसको सिक्योर करना है तो सीरियल, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, सॉरी, सीरियल क्वेश्चन मार्क, कंसोल पोर्ट होता है तो मैं लिखूंगा कंसोल, उसके बाद जस्ट लोकल। ठीक है, मैं यहाँ पर दे दूंगा लोकल और एंटर, हो गया। ठीक है। अब जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करेंगे, जैसे कि मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ, सी, यू कैन सी यूजर नेम, सो इट इज सिस्को एंड इट इज सिस्को। नाउ यू कैन एबल टू एक्सेस, नाउ यू विल बी एबल टू एक्सेस द फायरवॉल। तो ये एक अलग सिक्योरिटी है, यही फायरवॉल, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन मैंने ट्रिपल ए लॉग इन करते हुए राउटर पर बताया था, स्विचेज पर बताया था, वही कमांड है, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, कुछ अलग नहीं दे रहा हूँ। ओके। और भी मान लिया कि एक साथ इसमें मल्टीपल चीजें चेक ऑन करनी है, तो राउटर पर मैंने क्या बताया था, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इंक्लूड कर सकते हो, मान लिया कि स्पेसिफिक कुछ चीजें इंक्लूड करना है, यूजर के बारे में अपडेट चाहिए, यूजर्स का अपडेट चाहिए, जो कुछ भी है, तो आप यहाँ से जस्ट चेक कर सकते हो। अच्छा, नहीं कोई अपडेट आ रहा है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड का डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो यूजर्स का जो भी कॉन्फ़िगरेशन का है, जस्ट यहाँ से चेक कर लो, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं यूजर नेम क्रेडेंशियल अपडेट आपको मिलेगा। देखना पड़ेगा ध्यान से, आप इसमें देखेंगे तो क्रेडेंशियल आपको मिलेगा।
तो ये कुछ अपडेट है, बहुत कुछ यहाँ से टफ या वैसा नहीं है। अगर मुझे यहाँ से एज पर डायग्राम की आईपी वगैरह देना है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और डीप कॉन्फ़िगरेशन करवा देता हूँ। यस। अब फायरवॉल पर मैं राउटर के साथ कोई टर्मिनल एक्सेस या कुछ ऐसा लेकर दिखाता हूँ। तो पहले मैं राउटर को एक्सेस कर लेता हूँ। एंड मेरे पास PC4 की ट्रैफिक यहाँ पर है। PC4 की ट्रैफिक, मेरे पास राउटर की ट्रैफिक, ये ठीक है। तो राउटर मैंने एक्सेस कर लिया, ये PC4 एक्सेस कर लिया, और बाकी ये सब तो एक्सेस है ही। तो जस्ट मेरे पास राउटर, और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना कुछ नहीं है, जस्ट ये ऑन हो रहा है। PC4 का जो एड्रेस है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, 100.20 है, ठीक है, 100.20, और गेटवे हमारा है 100.254। तो मैं आईपी, और सॉरी, आईपी 192.168 हंड्रेड डॉट कितना है, 20 मास्क 254, आईपी सेटअप कर दिया। सेव, सेट पीसी नेम, मैं पिंग करता हूँ 192.168 कितना है, 100.254। तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि फायरवॉल के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रैफिक नहीं आ रहा है, और मुझे सबसे पहले स्विच पर क्या करना है, इन सारी ट्रैफिक को, या E0/0, 0/1 2 3, इन सभी पोर्ट को ऑन कर देना है। तो मैं स्विच का भी एक एक्सेस ले लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा। एंड वन थिंग, ये स्विच है, इनेबल कॉन्फ टी एंड इंटरफेस स्पेस रेंज, रेंज, और E0/0 से लेकर 3 तक, और नो शट डाउन, डू राइट, सारे इंटरफेसेस ऑन कर दिया ताकि स्विच का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, PC4 से अब मैं सेंड करता हूँ कोई ट्रैफिक, तो स्टिल हमारे फायरवॉल के पास ना ही इनसाइड आउटसाइड कोई वो नहीं जाएगा। अब मुझे इसको फिक्स करना है, ध्यान देना। मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मुझे ये PC4 को सेंड करना है और इधर की ट्रैफिक यहाँ तक लेकर जानी है। ये सब चीज़ें आ गई तो फिर आप एक एक कॉन्फ़िगरेशन करते जाओ, जैसा आप पॉलिसी जो भी कॉन्फ़िगर करना है, जो भी करना है, राइट। तो मुझे राउटर के लिए राउटर पर आना पड़ेगा, और राउटर का सेटअप हमारे पास यहाँ है, और राउटर का नेम हमारे पास है, आई थिंक राउटर 2। राउटर का नेम देना है, तो राउटर जस्ट मुझे यहाँ पर देना है। ओके, ओके, इनेबल। तो राउटर तो यहाँ पर है ही, मुझे कुछ ऐसा तो करना नहीं है, जस्ट मैं राउटर पर आ गया। विंडोज़ मशीन यहाँ से आप देख सकते हो, जस्ट इसको मैं चलने देता हूँ, और ये जस्ट लॉग वगैरह अपना सेटअप कर रखा है, देखने देते हैं। फर्दर मैं आगे की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपनी फायरवॉल को लेकर, कि क्या मुझे आगे सेटअप करना है, कैसे। तो मान लिया सबसे पहले मैं, अब ये डायग्राम जो है इसके साथ ये सारा सेटअप मुझे रन करना है। थोड़ा सा इंटरफेस और सब छोटा करना पड़ेगा ताकि साथ में ये डायग्राम भी आपको समझ में आए। ठीक है, ये चीज़ अभी सही है सबको, ये चीज़। तो मुझे फायरवॉल से स्टार्ट करना है। अब फायरवॉल पर मेरे पास जितने इंटरफेसेस हैं सबका आईपी देना है। तो सबसे पहले मैं ये राउटर का काम खत्म कर देता हूँ, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को एंड कर देता हूँ। तो राउटर होस्ट नेम मैं इसका राउटर कर सकता हूँ, या जो भी नेम देना है कर दिया।
समझ लो। एंड इंटरफेस स्पेस, अब इस राउटर का इंटरफेस है E0/0 0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168 क्या है 1.1 255 255 255 0। नो शट डाउन, डू राइट करके इतना कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव कर दिया। जो कन्फि अब देखो रियल इमेजेस के साथ जहाँ तक कि कॉन्फ़िगरेशन सही है, कोई डाउट नहीं है। अब वहाँ सेव करते जाओ, ये चीज़ ध्यान देना। अब एक चीज़ और, आप नो शट डाउन करने के बाद जस्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आईपी राउट। अब आईपी रूट मुझे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरा इनसाइड सोर्स जो भी है वो सोर्स आईपी के बारे में, इसका मास्क अपडेट के बारे में, और किसको देना है ये ट्रैफिक, कहाँ पर भेजी जा रही है। तो ये रूट किसको कर रहा है, 1.254 को। तो ये चीज ध्यान देंगे, लाइक 1.254 एंटर। अब ये ट्रैफिक आप फायरवॉल और इसके साथ रिप्लाई करके चेक कर सकते हैं थोड़े समय के बाद, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रैफिक जो भी हमारा फायरवॉल के लिए सेंड कर पा रहा है। स्टेप 2 में आप क्या कर सकते हो, अपने पीसी का आईपी आपने रखा है। अब मैं यहाँ से रिप्लाई लेता हूँ, पिंग स्पेस 192.168.1.1। राउटर के लिए क्या ट्रैफिक जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ठीक है, मैंने आईपी सेटअप सब कर दिया। अब ट्रैफिक मुझे आ जाना है सिस्को फायरवॉल के थ्रू ही अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रूट भी मैंने कर दिया। फायरवॉल के थ्रू राउटिंग करेंगे, इनसाइड आउटसाइड सिक्योरिटी फिक्स हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ जाएंगे एंड जस्ट आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब हमारे पास क्या है, G0/0। मैं पोर्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यू कैन सी G0/0, इंटरफेस 0/0। अब आईपी एड्रेस क्या है इसका, जस्ट यू कैन टाइप आईपी एड्रेस और 1.254, सो 192.168, सॉरी 192.164 1.254 विथ सबनेट मास्क, नो शट डाउन। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग आईपी नहीं दूं तो तुरंत मुझे बताना आप लोग। 1.254 सब कुछ ओके है। अब देखो, ये नेम इफ, अब हमारा ये तो मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए है, ये आउटसाइड के लिए होगा ना, दिस इज फॉर आउटसाइड। ओके, ध्यान देना, दिस इज फॉर आउटसाइड एंड दिस इज फॉर इनसाइड एंड दिस इज फॉर मैनेजमेंट 1.1.1.1। और इसका सेटअप तो मेरा हो चुका है, इसको तो अभी केयर नहीं करना है। तो मैं यहाँ से आउटसाइड के लिए लिखूंगा नेम इफ आउटसाइड, एंटर। देखो इसका सिक्योरिटी लेवल बाय डिफॉल्ट 0 आ गया। तो मुझे सिक्योरिटी लेवल देना भी है तो मैं 0 कर दूंगा, सिक्योरिटी लेवल 0। उसके बाद हमारे पास एक और इंटरफेस है G0/1। मैं एग्जिट कर सकता हूँ, या यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन मुझे ओके लग रहा है तो मैंने सेव कर दिया। जस्ट राइट कमांड अप्लाई करके इंटरफेस स्पेस G0/1। और इस पर्टिकुलर इंटरफेस पर मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168 एंड 100.254 विद सबनेट मास्क, नो शट डाउन, नेम इफ। अब ये हमारा क्या है, इनसाइड है, तो इनसाइड दे दिया। इनसाइड सिक्योरिटी लेवल देखो इसका क्या बाय डिफॉल्ट 100 है, सिक्योरिटी लेवल 100 दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। अब मैं राउटर, अब मैं पहले पीसी पर आता हूँ और पीसी से मैंने राउटर का रिप्लाई लिया, अंदर से ट्रैफिक बाहर मैंने भेजा, कुछ अपडेट आया, अभी नहीं जा रहा है, बट मैंने बोला कि हायर सिक्योरिटी लेवल अलाउ होता है, तो बट अलाउ करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद राउटर से अगर मैं रिप्लाई लेता हूँ, राउटर से 192.168 पिंग स्पेस 192.168 1.254 ये रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली फायरवॉल को सेंड कर रहा है। बट अगर राउटर सेंड करेगा 100 इस पीसी की आईपी क्या है 120, तो अगर ये 20 को सेंड करेगा तो यहाँ पर रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि बाहर की ट्रैफिक ना अंदर है, ना अंदर की ट्रैफिक बाहर है। अब इस चीज को फिक्स अप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम है। जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आता हूँ एंड फिक्स अप, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड, और मुझे फिक्स अप लिखना पड़ेगा, फिक्स अप। और ये प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आईसीएमपी, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर फिक्स अप प्रोटोकॉल आईसीएमपी
तो इट अलाउ पिंग मैसेजेस, बट ये सॉरी, ये मैं राउटर पर कमांड अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग बता भी नहीं रहे हो। राउटर पर मैंने क्या कर दिया? राउटर पर आईपी वगैरह देकर रिप्लाई मैंने लेना था, रिप्लाई नहीं आ रहा है, बस यही तो चेक करना था, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ फायरवॉल पर आगे की कॉन्फ़िगरेशन है ना, मुझे अलाउ करना है, फायरवॉल से अलाउ करना है। वही मैं कह रहा हूँ, ये कमांड लेके नहीं रहा फिक्सअप। और उसके बाद फिक्सअप मुझे क्या करना है? स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को, कौन सी प्रोटोकॉल है, दीज आर द प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यहाँ पर है। सो मुझे आईसीएमपी को मैनेज करना है। आईसीएमपी अलाउ हो गया, ठीक है। अब आईसीएमपी अलाउ कर देने से जस्ट आप ट्रैफिक सेंड नहीं कर पाएंगे, फायरवॉल आपका स्टिल कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अच्छा, अंदर से ट्रैफिक देखो, आईसीएमपी फिक्सअप हुआ तो पीसी ने राउटर से रिप्लाई लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब अंदर की ट्रैफिक बाहर जाना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब ये ट्रैफिक जो मेरा सेंड हुआ है, ये चीज अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, जैसे विंडोज मशीन पर रिफ्रेश करूं, यू कैन सी कुछ ट्रैफिक पास हुआ यहाँ पर, यू कैन सी। ओके, तो कुछ एचटीटीपी कुछ ऐसा ट्रैफिक, या फिर टॉप पर आ जाओ तो समथिंग कुछ ये अपडेट है। अच्छा, तो फिलहाल अभी यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर जो भी इंटरफेसेस मैंने कॉन्फ़िगर किया सब ऐड ऑन होते जा रहे हैं, राइट। चलो अच्छी बात है। अब मैं और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। आईसीएमपी को मैंने रूट किया, बट क्या राउटर राउटर रिप्लाई ले रहा है? 20 से, 20 से रिप्लाई नहीं ले रहा है, 120। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब आउटसाइड की ट्रैफिक को जब तक हम अंदर अलाउ, देखो अंदर वाला ट्रैफिक बाहर जा रहा है और रिप्लाई मैसेज भी लेकर आ रहा है। तो इस यही बेनिफिट मिलता है आपके हायर सिक्योरिटी लेवल का, जब आप किसी भी फायरवॉल पर कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर आउटसाइड इंटरफेस फॉर इनसाइड कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके लिए हमें फायरवॉल पर दोबारा से आना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर एक रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो रूट कैसे होगा? रूट स्पेस, अब मुझे आउटसाइड, आउटसाइड की ट्रैफिक कहाँ पर करनी है? इनसाइड के लिए तो 0 0 0 0, एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए लेना है तो एक पर्टिकुलर होस्ट ले लो, डिपेंड ऑन यू। तो मैं अभी 0 0 0 0 0 0 ले लिया, 0 0 मतलब एनी टू एनी, ठीक है। एनी टू एनी, कोई किसी को भी रिप्लाई ले सकता है। 192.168.1.1 की ट्रैफिक, ओके। तो ये ट्रैफिक मैं कर रहा हूँ यहाँ पर अलाउ, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब मैं राउटर पर आता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिप्लाई हमारा सक्सेसफुल हुआ, या ट्रैफिक हमारा अंदर आना स्टार्ट हुआ। चेक कर लेते हैं। 120 से 0%, ओके। 100.254। अभी भी हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ओके, राउटर की ट्रैफिक अंदर के लिए ओके, ठीक है। अभी हम आउटसाइड की ट्रैफिक को जस्ट एज इट इज रहने देते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हमने जस्ट ट्रैफिक से रिप्लाई लिया, हमारा इस इधर की ट्रैफिक इधर तो नहीं आ रही, अंदर से ट्रैफिक बाहर जाना स्टार्ट हो गया है। तो ये रिप्लाई आप 1.1 से भी लेकर चेक कर रहे हो, 1.1 मतलब अंदर से इस पीसी से यहाँ तक ट्रैफिक पास है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? मान लिया कि फर्दर अगर कुछ और मुझे ऐड ऑन करना है, या लाइक आईसीएमपी फिक्स तो मैंने कर ही दिया है, फिक्स अप प्रोटोकॉल आईसीएमपी, एंड रूट आउटसाइड के लिए।
चलो एक छोटा सा दूसरा सेटअप यहाँ से लेते हैं, है ना, इसको चेक करेंगे लेटर। तो अभी हमारे पास क्या है कि जस्ट रूट आउटसाइड, ये एज इट इज वर्किंग है इनसाइड टू ट्रैफिक। अगर इनसाइड की ट्रैफिक बाहर नहीं जा रही है तो ये कमांड आपका क्या करेगा, आउटसाइड की ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। अच्छा, अगर मैं रूट करता हूँ एंड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से मैं इनसाइड करता हूँ नेम ऑफ द इंटरफेस, है ना, तो क्या होने वाला है इनसाइड, और इनसाइड की सिक्योरिटी लेवल, चलो उसको एक बार चेक करते हैं। होस्ट नेम मैंने यहाँ से दिया, तो मुझे होस्ट नेम आइडेंटिफाई नहीं करना है, 000 000। अगेन क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि एड्रेस गेटवे जिसके थ्रू ट्रैफिक अंदर जानी है। तो मेरा जो ट्रैफिक है ये फायरवॉल पर मैं सेटअप कर रहा हूँ। तो अगर मेरा मेरा जो लाइक 192.168 बाहर की ट्रैफिक अंदर है, तो फिर 100.254। अच्छा, मैचेज होस्ट दिखा रहा है 100.20 कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 1.1 को भी नहीं ले रहा है। ओके, इसको चेक कर लेंगे हम, कोई अपडेट होगा शायद। काफी देर से कॉन्फ़िगरेशन भी चल रही है, तो अभी आ जाएगा दिमाग में। लेटर हम क्या करते हैं, अभी तो हमने काफी चीजें अलाउ कर दिया, इन साइड से ट्रैफिक बाहर जाना स्टार्ट हो गया, बाहर की ट्रैफिक हमारा जो अंदर से बाहर जा रहा है वो अलाउड है। और स्पेसिफिक जो भी प्रोटोकॉल आपको फिक्स करना है, जो भी लाइक चीजें, जैसे फिक्सअप प्रोटोकॉल मैं करता हूँ। अगर मुझे टीसीपी को अलाउ करना है या वट एवर जो भी यहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं, आईसीएमपी, एचटीटीपी, वट एवर, तो इसमें से जो जो आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से फिक्सअप में डाल सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड रिप्लाई और सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाए। मैं किसी होस्ट को ये कहता हूँ कि भाई तुम टेलनेट के थ्रू, ये पीसी अगर टेलनेट के थ्रू इस फायरवॉल को एक्सेस करना चाहता है तो क्या कर ले, तो ये लिखेगा टेलनेट। ठीक है, टेलनेट। अब टेलनेट मुझे अलाउ करना है किसके लिए, टेलनेट स्पेस, अब मुझे किस होस्ट के लिए, तो 0 0 का मतलब होता है किसी को भी, अगर एक होस्ट को मान लिया इसको अलाउ करना है तो इसकी आईपी देकर इसका सबनेट मास्क दे दो, बट सभी को अलाउ करना है तो 0 0 दे दो। और ये इनसाइड दे दो। इनसाइड का मतलब कि अंदर के लोग इस टेलनेट को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं। ठीक है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। राउटर पर ऐसी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें उतना नहीं है, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिला। उसके बाद इनसाइड आपने कर दिया, अब यहाँ से आपने पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा लाइक PASS पासवर्ड 123, पास WD 123। ठीक है, पासवर्ड नहीं देना, पास WD, कमांड एक्सेप्ट होगा। उसके बाद मैं सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद मैं टेलनेट लिखूंगा, तो मुझे टेलनेट के बारे में बता देगा कि टेलनेट पर हमारा इनसाइड के लिए कोई भी होस्ट अलाउ है। स्पेसिफिक कोई होस्ट होता तो उसके बारे में यहाँ पर हमें अपडेट मिल जाता। एक चीज़ और हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टेलनेट के लिए, टेलनेट स्पेस टाइम आउट में सेटअप कर दूं कि मुझे एक बता दो कि इतने समय के अंदर या 2 मिनट के अंदर टेलनेट अगर काम नहीं करता है, टेलनेट को यूज नहीं होता है, तो वो समय या सेशन टाइम आउट हो जाए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कोई भी सेकंड ले सकता हूँ, 10 मिनट 5 मिनट जो भी है वो चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करके काम कर सकता हूँ। ये चीज़ याद रखेंगे। और टेलनेट वगैरह, मान लिया कि सिंपल टेलनेट को मुझे डिलीट करना था, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगर स्पेस टेलनेट। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब मैं विंडोज़ के इस पर्टिकुलर विंडोज मशीन से, जैसे कि मैं एक्सेस ले लूँ इस विंडोज मशीन का, एंड या यू कैन सी दिस इज माय विंडोज 7। और इस विंडोज मशीन का अपडेट आप देख लेना, विंडोज मशीन का अपडेट जो हमारा है 100.50 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 100.50 ये है।
पिंग स्पेस 192.168.168 1.1 रिप्लाई आना चाहिए, आ रहा है राउटर से। राउटर का भी टेलनेट एक्सेस यहीं से आप ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको, अगर ज़रूरत है तो ले सकते हैं। पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, हाँ, लाइक 192.168.100.254 एंड यू कैन सी, सॉरी, एक चीज़ और यहाँ से मैं अलाउ करता हूँ पहले। 192.168.100.254 यू कैन सेलेक्ट टेलनेट, तब तो एक्सेस होगा, और यहाँ से आपको एक्सेस मिल गया। अब पता नहीं यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन क्या क्या मैंने पासवर्ड दिया था, याद है किसी को? 123, हाँ जी 123 है। इनेबल पासवर्ड 123 है, हाँ जी, हो गया। तो ये चीज़ हो जाने के बाद आप जब इसको अपने विंडोज़ की मशीन पर आएंगे, ये विंडोज़ की मशीन है, इस विंडोज़ की मशीन पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा टेलनेट यहाँ से एक्सेस हुआ है, कहीं होगा यहीं पर। टेलनेट, यू कैन सी दिस इज़ द टेलनेट, लॉगिन परमिट किसको किया गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। यू कैन सी लॉगिन परमिटेड, ठीक है। तो कंप्लीट अपडेट के साथ यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। चलो फिलहाल एक दिन का ये पार्ट नहीं है, पूरी पूरी डेडिकेटेड फायरवॉल्स और सारी चीज़ होती हैं। यूट्यूब पर एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, फॉलो अप रखेंगे, 2 वीडियो 2 पार्ट आ चुका है, 10-20 पार्ट आपको मिलेंगे, हर एक फायरवॉल का ऐसे ही मिलेगा, तो लर्न करते रहेंगे।